Well, good morning, dear students. Hope you are enjoying your studies. And we are going through our chapter number 8, Body Movements. And in this chapter, so far, what we have done, what we have covered? We have covered what? There is a movement in body parts, and movement of body as a whole, which is known as locomotion. Then skeleton, the bony framework present inside our body is known as skeleton. Then the whole of the skeleton we have studied by dividing it into skull, backbone, rib cage, shoulder and hip bones, hand and foot bones. Then we have studied about what? Cartilage present in our ear, nose and all that. Okay? So then we have studied about if there would have been a single bone in our body, movement was impossible. So God has provided joints. So we have studied what is a joint. Okay? Then we have studied types of joints. Wherever two or more than two bone joints, there is a joint. Okay? Then we have studied about different types of joints, hinge joints, allowing movement in one direction only, upward or backward. Then we have studied about ball and socket joint, which allows movement almost free in all directions. Then pivot joint we have studied. That means this joint where there is some movement of a cylindrical ball on an axis, sideways or up down. That's all. Then we have studied about fixed joint. Yes, need of fixed joint was there in case of skull. Reason being, it is going to protect. It is protecting. It is not going to. It protects the brain and your other three central organs. Then hip bones area, because we sit by the basin-like structure formed by the hip bone area. Then we have studied about muscles. What is the muscle? Is the fibrous tissue. Okay? Which extends when asked to do so. When asked, यानी brain जब उसे command करता है, उस fibrous tissue को it can extend. It can contract, not extend, it can contract. Okay. Then we have studied about bicep muscles and triceps muscles. ठीक है? Biceps and triceps, that means one way action, contraction only. वही है. Muscles क्या है बच्चों? A fibrous tissue which contracts when asked to do so by the brain. Okay. So, secondly, we have studied that these biceps and tricep muscles, they always act in pair. They always act in pair. Okay. So that there is a body movement. थोड़ा हम डिटेल में जाते हैं बच्चों आज. क्या कहते हैं कि movement in animals. We will study the movement in animals, in ourselves, vertebrates, non-vertebrates, animals with legs and without legs. So we will try to study. I wanted to finish this in today's lecture, but we are going to extend by one more lecture of a short time of 20-25 minutes. Okay, I hope you will bear with me. So, movements in animals, movement in muscle in a coordinated manner. कहने का मतलब क्या है? Until and unless there is a coordination between the bicep and the tricep muscles, there can never be any movement. कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये जो आपके bicep muscles हैं, we call them flexor muscle also. Flexor muscle, that means when they contract, they bend the thing, मुड़ती हैं उससे चीजें. ठीक है? And triceps muscles, which are also known as extension muscles, what? They straighten the
bones. They straighten the body part. Okay. So before coming to the particular point, how these animals or how a human being moves, let us go beyond our topic. हम थोड़ा सा अपने इस बॉडी मूवमेंट से थोड़ा परे चलते हैं. कहाँ चलते हैं? They had been a great scientist, जो आज तक साइंस जब हम पढ़ते हैं in 9th, 10 plus 1 plus 2 and all that, and at basic level also, वो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. उस साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन. कहते हैं कि न्यूटन एक बार वो किसी पार्क में था. ही वॉज इन सम गार्डन एंड ही वॉज सिटिंग जस्ट underneath the tree of apple. So a ripe apple, it has fallen. क्या होता है जब फल पक जाता है ना, वो अपने आप नीचे गिरता है. न्यूटन was sleeping, it just has fallen on his nose. उसके नाक पे गिरा, उसकी नींद खुल गई. तो उसने सोचा ये एप्पल नीचे क्यों आया? जब पेड़ से टूटा नीचे क्यों आया? Why it has not gone up in the sky? And he has given the universal law of gravitation, which is acceptable today. पर वो acceptable रहेगा. Similarly, not only he has given this gravitational law and all that, universal law, he has given laws of motion. First law of motion, second law of motion, third law of motion, and he has given some laws of heat and all that. But as on date, his laws of motion and that gravitational law holds good. Holds good means आज तक भी वो उस पे हम क्या उसको हम मानते हैं. It holds good. बिल्कुल सही है. Nobody has denied it and it will not be denied also. डिनाइड मतलब क्या? इसका कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता, ये सही है. तो व्हाट आर द लॉज ऑफ मोशन? व्हाट आर द लॉज ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ सेज इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यानी कोई चीज चल रही है या रुकी हुई है. चलने वाली चीज चलती रहेगी और कोई चीज जो रुकी हुई है वो चल नहीं सकती until and unless an external force is applied on it. बाहर से कोई धक्का नहीं मारे. आप खड़े हो तो आप क्या चलोगे? नहीं. आप चल रहे हो, ठीक है. आप बोलते हैं क्रिकेट का बैट्समैन है, हिट करता है, ग्राउंड पे बॉल जा रही है, नेचुरली आल्सो अगर तो फील्डर उसे स्टॉप कर ले, अदरवाइज वो अपने आप भी रुक जाती है. तो मैंने अभी कहा कि until and unless external force is applied, it will not stop. तो वो कैसे रुकती है भाई? Yes, that we will study in detail in 8. That is because of the frictional force. यानी क्या है? जब वो बॉल ग्राउंड में घिसटती हुई चल रही है, जो फ्रिक्शन है आपस में ग्राउंड और बॉल का, that is the opposing force which stops it. Otherwise, if there is no friction, ball will go on moving. So, second law, force is equal to मास मल्टीप्लाइड मास टाइम्स एक्सीलरेशन. ये थोड़ा बच्चों आपके लेवल का नहीं है, फिर कभी डिस्कस करेंगे इसको जब 8th में 9th में हम पढ़ेंगे. ठीक है. प्लस थर्ड लॉ, यस, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ विच इज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ आवर टॉपिक आल्सो. कैसे? थर्ड लॉ, व्हाट थर्ड लॉ सेज एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट. आज बच्चों इस लेक्चर को सुनने के बाद छोटा सा काम करना, अपना इसको क्या कहते हैं, मुट्ठी को बंद करके दीवार पे मार के देखना. यू आर अप्लाइंग फोर्स अगेंस्ट द वॉल, लेकिन क्या है? दर्द आपको होती है. दैट मीन्स वॉल इज आल्सो एक्सर्टिंग द सेम फोर्स ऑन योर हैंड. और आपने देखा होगा अक्सर बच्चों स्कूल के अंदर क्या होता है बच्चों? टीचर जब कभी भी स्टूडेंट्स को पीटता है, वैसे तो पीटना यार चाहिए ही नहीं, मैं कभी नहीं पीटता हूं, लेकिन क्या होता है बच्चों, साल में एक आध बार आप मौका ऐसा देते हो
कि टीचर को डंडा कभी उठाना पड़ता है। तो डंडा क्यों उठाता है भाई? Suppose there is a mass punishment. Mass punishment means you are 30 students and teacher has to give punishment. आपने गलती ऐसी कर दी कि आपके 30 के 30 स्टूडेंट्स को पनिशमेंट मिलनी है, तो क्या करेगा? अगर 30 लोगों को वो चांटा मारता है टीचर, तो अगर तो वो मैम है तो वो घर में जाके खाना नहीं बना सकती, अगर वो सर है तो उसको अपनी बीवी से जाके अपने हाथ दबवाने पड़ेंगे। क्यों? 30 बच्चों को जब वो चांटा लगाएगा, जितनी फोर्स से लगाएगा उतनी फोर्स से ही उसके हेड पे, उसके हाथ पे भी चोट लगेगी। बच्चे तो एक एक चांटा खाएंगे और सर के या मैम के हाथ को 30 चांटे पड़ जाएंगे, तो किसे पेन ज्यादा होगा बच्चों? मैम को या सर को? ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है? थर्ड लॉ होल्ड्स गुड टुडे आल्सो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन द अपोजिट, मतलब दूसरी डायरेक्शन। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तब हम समझ पाएंगे हम चलते कैसे हैं, हम मूव कैसे करते हैं। ओके, अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं। स्विमिंग बच्चों, मैंने लिखा होगा यहाँ, यस, स्विमिंग एंड फ्लाइंग टू अंडरस्टैंड, यानी अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे चला जाता। स्विमिंग में बच्चों आपने देखा होगा, आपने जब कभी कंपटीशंस होते हैं या कभी अगर आप में से कुछ बच्चे अगर आपने स्विमिंग सीखी है, आपको शुरू में क्या सिखाते हैं? पानी को आप क्या करते हो? यू पुश द वाटर डाउनवर्ड एंड backward. Now what you are doing? When you are pushing the water downward and backward, you are applying force on the water downwards and backward. Downwards, backward. Downwards, backward. The same amount of force is being applied by the water on your body. वो किस तरफ होगी? इट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो कहने का मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? पानी को नीचे और पीछे धकेल रहे हो, पानी आपको ऊपर और आगे धकेलेगा। वो क्या है? स्विमिंग। राइट? आज समझ में कि नहीं? कहने का मतलब क्या है? यू आर वॉकिंग एंड ऑल दैट। It's also related with the third law of motion of Newton, sir. As and when you apply the force, there is always a equal and opposite reactive force. तो जब स्विमिंग, फ्लाइंग आल्सो, वो बर्ड्स का जब हम कल डिटेल में करेंगे, then I will let you know. बर्ड्स में क्या आता है बच्चों? जब पक्षी उड़ते हैं वो अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं। डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक में क्या होता है बच्चों? व्हाट हैपेंस इन डाउन स्ट्रोक? इन डाउन स्ट्रोक द एयर इज पुश्ड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। उसके विंग्स ऐसे आते हैं नीचे की तरफ। ऊपर जो ला रहा हूं मैं, वो आई एम नॉट शोइंग दैट सेम पोजीशन हाउ दे कम, दैट आई विल लेट यू नो टुमारो। मैं नीचे जाने की एक्शन कर रहा हूं, नीचे जाने की। क्या अंदर कैसे जा रहे हैं वो? इन द डाउन स्ट्रोक, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। ड्यूरिंग द फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स, व्हाट द बर्ड इज डूइंग? Bird is pushing the air downward and backward. Then what will be the opposite and the equal reaction? Air will be pushing the bird upward, forward. उड़ गया पक्षी। Now come to the movement in human being. Yes. अब क्या होता बच्चों? जब हमारे ट्राइसेप्स मसल्स लेग्स के वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो क्या है? एक्सटेंशन मसल्स हैं, स्ट्रेटन करते हैं आपकी लेग को। आप किस पे हो? अर्थ के ऊपर हो। जब आपकी
लेग्स जो हैं अर्थ के ऊपर स्ट्रेटन होती हैं, सीधी होती हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द अर्थ इन द बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी वो धरती को नीचे की तरफ और पीछे की तरफ धकेलती। कौन? आपकी लेग्स। लेग्स मतलब नहीं, दोनों तो नहीं होते ना, वन बाय वन यू टेक स्टेप्स, तभी आप चल पाते हो ना। यानी कहने का मतलब क्या है, जब आपके एक्सटेंशन मसल, ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपके क्या कहते हैं उसको, लेग्स को स्ट्रेटन करते हैं वो, तब कौन सी रिएक्शन होती है धरती के ऊपर? योर लेग पुशेस द अर्थ डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड। अब क्या होगा उसका रिएक्शन? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन सर के मुताबिक, द अर्थ विल पुश योर बॉडी अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड का फॉरवर्ड हो गया, डाउनवर्ड का अपवर्ड हो गया, एंड योर बॉडी विल बी पुश्ड अहेड, चल पड़ेगा। देन देयर इज ए, सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर इज ए व्हाट, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट इन मसल्स इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर। आपके व्हाट, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन मसल्स का कोऑर्डिनेशन है कॉन्टिन्यूसली। आप क्या करते हो? बेंड करते हो, स्ट्रेटन करते हो, बेंड करते हो, स्ट्रेटन करते हो, एंड यू स्टार्ट मूविंग ऑन द रोड। सो दिस इज हाउ वी मूव, ओके। नाउ कमिंग टू द व्हाट, कॉकरोच इज ए इनवर्टिब्रेट। इसके रीढ़ की हड्डी या दूसरा स्केलेटन नहीं होता। स्केलेटन जो है इस कॉकरोच का एक पर्टिकुलर चिटनस मटेरियल का बना होता है, चिटनस, CHITNOUS, चिटनस मटेरियल, ठीक है। बट दैट इज नॉट ए एंडो, इट इज ए एक्सोस्केलेटन। कॉकरोच के अंदर क्या होता है बच्चों, जो उसका स्केलेटन है वो आउटर है, बॉडी के आउटर है, और उसके ऊपर क्या है बच्चों, जो उसकी ब्रेस्ट बोन है उसके ऊपर मसल्स अटैच होते हैं। इट कैन फ्रीली एक्सटेंड और रिलैक्स द मसल। उसके भी बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स हैं, सेम 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 6 लेग्स हैं उसकी बच्चों, किसकी? और आपको मालूम है कॉकरोच नॉट ओनली इट कैन वॉक, इट कैन फ्लाई आल्सो, इट कैन फ्लाई आल्सो, इट कैन वॉक एज वेल एज इट कैन फ्लाई। सो जो उसके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स हैं, और सेकेंडली क्या है बच्चों, इसकी जो लेग्स होती हैं, वो जो एक्सोस्केलेटन है उसका, उसके अंदर बच्चों क्या, जो थिकनेस मटेरियल है हॉलो, एक वो जैसे ना बीच में से खाली खाली होती है, हॉलो। सो इट्स मतलब यू कैन से लाइट इन वेट, बॉडी इज लाइट इन वेट। So with the help of weight, flexor and extension of biceps and triceps, उनकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से क्या होगा? जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ट्राइसेप्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया बच्चों, ब्रेन कैन डिमांड द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, वन वे ट्रैफिक, इट कैन नॉट रिलैक्स एट इट ऑल। तो कोऑर्डिनेट मैनर में बाइसेप्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ट्राइसेप्स अपने आप एक्सटेंड हो जाते हैं। नाउ ब्रेन गिव्स द कमांड टू ट्राइसेप्स टू कॉन्ट्रैक्ट, बाइसेप्स विल एक्सटेंड, और जो उसकी लेग्स हैं कॉकरोच की वो स्ट्रेटन हो जाती है, वो स्ट्रेटन हो जाती है। सो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द मसल्स, दिस कॉकरोच हैविंग द एक्सोस्केलेटन, इट मूव्स। और ये एक्सोस्केलेटन क्या है बच्चों? It protects the internal organs, plus it gives the room for the attachment of muscles in the cockroach. Then, not only it is having biceps and triceps muscles, मैंने कहा अभी बताया ना आपको, it can fly also, it can move and it can fly also. So what happens is,
इसके क्या है बच्चों? विंग्स हैं दो, एक्सोस्केलेटन, एंड दे आर अटैच्ड विद द फ्लाइट मसल्स. जो एक्सोस्केलेटन है, देयर इज अ ग्रेट रूम फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स. दीज विंग्स, जो इसके विंग्स हैं कॉकरोच के, दे आर अटैच्ड टू द व्हाट? ब्रेस्ट बोन ऑफ द कॉकरोच with the help of flight muscles. Why we call them flight muscles? Flight muscles are bit stronger than the regular muscles because they have to apply more force. They have to move the wings upward and downward vigorously. Now what happens is, when with the help of flight muscles, downward and upward movement of wings, जो इसके दो wings हैं किसके? कॉकरोच के, उनको वो क्या करता है? डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, एंड मूवमेंट इज सेम एज इन केस ऑफ फ्लाइंग ऑफ द बर्ड. जैसे पक्षी उड़ता है आपका, वही व्हेन देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट इन केस ऑफ द कॉकरोच विंग्स, व्हाट हैपेंस इज कॉकरोच इज पुशिंग द एयर डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड. Downward and backward, and the air pushes the cockroach upward and forward. That's all. उससे क्या है? उससे क्या है? कॉकरोच उड़ सकता है, कॉकरोच उड़ सकता है. ठीक है, चलिए. So now coming to the yes, birds. Oh sorry, मैंने पहले थोड़ा ये कह दिया आपको that we will study tomorrow. Time is there. Let's try to finish. Birds at least if we cannot cover that movement in case of earthworm. चलिए. What happens in case of birds? Birds में क्या है बच्चों? There are special or certain modifications in the body or structure of the birds. हम जैसे क्या है इसका? जो बोन्स होती हैं, दे आर वेरी लाइट, दे आर होल्स, उनके अंदर हॉलो, अंदर से वो खोखली होती हैं, पोरस होती हैं, यानी कि वो क्या है? दे आर बिकम लाइटर इन वेट. अगर आप एक इंसान की हड्डी को देखो तो उसके ऊपर यानी कि होल आपको पोर्स नजर नहीं आएंगे. बट इन केस यू हैपन्स टू सी द बोन ऑफ अ बर्ड, तो उसके ऊपर पोर्स हॉलो इनसाइड. ओके, सो सेकेंडली क्या है बच्चों? जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज, आपने देखा बच्चों, पक्षियों के जैसे हमारे दो हाथ हैं, दो पांव हैं, जो इसके 4 limbs हैं, जो आगे वाले इसके हाथ जो है, दे आर कन्वर्टेड इनटू द फ्लाइट विंग्स. दे आर कन्वर्टेड इनटू द फ्लाइट विंग्स. Their bones are what? Quite light in weight because of the hollow structure and the pores present on it. ठीक है? Then they are having a very powerful flight muscles. Powerful flight muscles. Okay? और उनकी जो ब्रेस्ट बोन होती है बच्चों, जैसे मैंने आपको उस दिन हमने स्केलेटन में देखी थी, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम. हमारा तो सिर्फ चेस्ट में ये इतनी है. ब्रेस्ट बोन का साइज ऑफ ब्रेस्ट बोन इज नॉट मच बिगर. लेकिन पक्षी में क्या होता है? इट ऑलमोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बैक एंड इट एक्सटेंड्स अ लॉट. कहने का मतलब क्या है? उसकी जहां बैक बोन एंड सी हो रही होती है, उससे लेके टेल तक उसके वो जो है, उसकी जो ब्रेस्ट बोन है वो एक्सटेंड करती है. एंड we call this breastbone as keel. K-E-E-L. वो एक चपटा सा तिकोना सा एक स्ट्रक्चर बन जाती है. इसका फायदा क्या है पक्षी को? More of flight muscles can attach over that area. जितना ज्यादा एरिया होगा उस ब्रेस्ट बोन का, चपटी ब्रेस्ट बोन का, उतने ज्यादा मसल्स होंगे, और उतने ही वो क्या होगा, उतना ही वो पक्षी क्या होगा? पावरफुल होगा इन बीटिंग इट्स विंग्स अप एंड डाउन. यानी कि ज्यादा फ्लाइट मसल्स, स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स
क्या उसको करते हैं, पक्षी को ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं टू मूव इट्स विंग्स अप एंड डाउन। और आपको मालूम हो बच्चों, when there is migration of birds, few birds travel distance of thousands of kilometer at a stretch। एक बार वो उड़ते हैं, वो उड़ते ही रहते हैं, साइबेरियन रशिया से लेके इंडिया एशियन कंट्री तक आते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, their body shape is streamlined body। Streamlined body means which can easily pass through, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर वो जो हवा की रुकावट है, हवा को काटती हुई धकेलती हुई, आपने देखा होगा फिश की भी क्या है बच्चों, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है, टेपरिंग बॉडी, टिप एट द वन एंड, बल्जिंग फ्रॉम द मिडल एंड अगेन टेपरिंग डाउनवर्ड्स। कहने का मतलब क्या है, कोई भी शेप जो एक कोने से ऐसे स्टार्ट होती है बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट थिक इन द मिडल लाइक दिस, थिक मोर स्पेस, थिक अगेन इट गोस। आपकी मछली देख लीजिए, इवन आपके एरोप्लेन देख लीजिए, दैट इज व्हाई द एरोप्लेन कैन फ्लाई इन द एयर। कभी टाइम लगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे, हाउ द एरोप्लेन फ्लाइज। ओके, सो कहने का मतलब क्या, देयर आर 4-5 additional points in case of birds. What are they? Four leaves are converted into wings, hollow bones, streamlined body, powerful flight muscle, breastbone is extended as keel. These are the extra advantages to the bird. अब क्या होता है बच्चों, with his hind limbs, पिछले वाले यानी जो पांव है उससे पक्षी बड़े आराम से चल सकता है। It can move on the ground. Again, there should be coordination of the flexor and extension muscle. कहने का मतलब है, जब पक्षी जमीन पे, when the bird moves on the earth, coordination between the biceps and triceps muscle is must. Without that, there cannot be any movement. Bones will up. Pakshi will, bird will not move. Bones will not move. Body parts will not move. Okay? So, with the hind limbs, it can walk on the ground. But when we say the forelimbs have been converted into wings, and by using the strong flight muscles, it have two types of what? Strokes of the wings. Strokes of the wings. One is known as the downward stroke and the upward stroke. अब क्या होता है बच्चों, डाउनवर्ड स्ट्रोक में what the bird is doing, वो अपने डैने को, उसको डैना बोलते हैं, जब विंग्स को ओपन करता है, इट मूव्स लाइक दिस, डाउनवर्ड बैकवर्ड, डाउनवर्ड बैकवर्ड। बट अप स्ट्रोक के वक्त क्या करता है, इट ऑलमोस्ट स्ट्रेटन इट्स, लेट मी कम टू द नियर द बोर्ड, यू कैन सी, डाउनवर्ड बैकवर्ड, इट विल जस्ट स्ट्रेटन एंड move the wing. This is upstroke. At the time of upstroke, wings, when downstroke, wings are going downward and backward. But upstroke, it almost straightens its wings and they come like this. Why? Reason being, when downward and backward, it is pushing the air and air is pushing the bird forward and upward. If he is bringing back the wings like this, then the force applied in pushing the air downward and backward will be nullified by the backstroke or the upstroke. तो कहने का मतलब क्या है? There is a difference in the movement of the wings of the bird when they are going down. That means at the time of downstroke, the bird with the help of its wings pushes the air
downward and backward, and when it brings its wings upward in the upstroke, it almost brings parallel to its body, straightens the wings. That means less and less minimum force is applied, and it does not disturb the force which the air is exerting on it in pushing its body forward and upward. This is how a bird flies. A bird flies. और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बच्चों, during migration means when the birds migrate from the colder area to the warmer areas for food and shelter and for breeding and all that, जब हम 8th में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, we will discuss in detail. The only thing is movement is known as migration. जैसे अब आजकल चल रहा है ना कोविड-19 में, माइग्रेटरी लेबर, दे आर मूविंग फ्रॉम द लुधियाना, जलंधर, बॉम्बे, राजकोट, अहमदाबाद, सूरत टू बिहार एंड यूपी. माइग्रेटरी लेबर, वहां काम था, अब काम नहीं है, घर जा रहे हैं. वहां सर्दी है, फेवरेबल कंडीशंस नहीं है रहने के लिए, फेवरेबल कंडीशन की तरफ उड़कर जाते हैं. तो कैसे उड़ के जाते? जस्ट आई हैव टोल्ड यू हाउ ए बर्ड फ्लाइज. Earthworm, yes, we could have discussed, but time is not permitting. Okay. Earthworm, snake, snail, and yes, fish. Very peculiar movement in fish. That we will study tomorrow with diagrams and all that. Earth also we will try to have some details. But in case of earthworm, as in vertebrates and other animals, we are having biceps and triceps muscles. In case of earthworm, we are having circular and longitudinal muscles. वो मैं आपको कल जब बताऊंगा what is the function of circulatory and longitudinal muscles. जब circular muscles contract होंगे, what will be the result, and when the longitudinal muscles contract होंगे, what will be the result. Okay, enjoy your study. For today it is, I think, sufficient. Thank you.